Welcome back, guys, to my channel, The Voice Box. Today, we are going to start a new series of economics for class 11th, and we are going to follow the introductory economics book by V.K. Ohri and T.R. Jain. So, let's begin with the first chapter named Economy and Economics. So, it's very clear that in this chapter, we are mostly going to deal with these two basic terms, economics and economy. So I think that you should have been a quite blur knowledge about this. Okay. So make this blur knowledge very clear so that in examinations it would be very helpful for you. Okay. So listen very carefully because every word is going to have a serious impact on your examination purpose. So this video is actually made for the help of that examination purpose only. That's why I never ask for to like you, to subscribe you. I only believe in the welfare of yours. Okay, now I am taking a lot of time, so let's start. Firstly, the term economics. So this term economics came into English language from two Greek words. So what are those? First is oikos, which means household, and second is neimin, which means management. So together they mean management of household. So according to Greece people, that economics is the management of household. But is it true? So what is the present definition which we are going to study? The modern definition according to your book is economics is that branch of knowledge in which those activities of humans are studied which they undertake to acquire and satisfy their unlimited wants. क्या हुआ इसका मतलब कि ये जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, केवल ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने का एक ब्रांच है जिसके माध्यम से हम ह्यूमन के द्वारा किए गए वो सारे काम को स्टडी करते हैं, किस लिए? अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। मतलब ये वो सब्जेक्ट है जिसमें ह्यूमन के द्वारा अपने अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जितने सारे भी काम किए जाते हैं, हम उतने सारे कामों को इस चैप्टर में इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. So that is only economics. So ultimately, what is the conclusion? That economics is that branch of knowledge in which those activities of humans are studied which they undertake to acquire to satisfy their unlimited wants. क्योंकि आप जानते ही हो मनुष्यों की चाहत कभी खत्म होती ही नहीं. Okay, come back. So let's go with the types of economics. There are mostly not, there are two types of economics. First is micro and second is macro. Before I proceed with the definition, I would like to introduce both these terms to you. आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिन लोग जिंदा है लेकिन they are very minute in size that we are not able to see them with our naked eyes. We need microscope or very powerful compound or electron microscope to see them. Okay, so इसमें छोटी वाली बात नहीं है, इसमें माइक्रो और मैक्रो. माइक्रो जो है वो आप 11th में भी पढ़ रहे हो और खैर ये आपका बस इंट्रोडक्टरी ही माइक्रो है. आप जब 12th के बाद इकोनॉमिक्स लेके और भी पढ़ोगे तब आपको माइक्रो और डिटेल्ड में पढ़ाया जाएगा और क्लास 12th में आपको इंट्रोडक्टरी मैक्रो पढ़ाया जाएगा. ठीक है, तो माइक्रो आप समझ लो किसी एक आदमी के बारे में जब बात हो तो माइक्रो होगा और जब पूरे क्लास के बारे में बात हो तो मैक्रो होगा. ओके, now here you can see the classification or the division of micro and macroeconomics on the basis. So what are those bases? These bases are meaning. हमने माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंशिएशन टेबल प्रिपेयर किया है, वो भी दो बेसिस के अकॉर्डिंग. व्हाट आर दे? फर्स्ट इज मीनिंग and second is central issue. So firstly deal with the meaning. So what is the meaning of microeconomics? Microeconomics studies the economic relationship or economic problem at the individual levels. Individual could be a firm, household और consumer. मैं आपको पहले ही बोला था
कि माइक्रो जब भी बोलेगा मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर या किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जब बात करेंगे तो वो आपका आएगा माइक्रो। और किसी एक इंडिविजुअल की किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, उस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तो क्या होगा, सो whole summary what it comes that microeconomics studies the economic relationship or economic problem at the level of individuals and individual be a firm, household or consumer। वो इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है वो इंडिविजुअल आपके परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो सिर्फ आपकी इच्छाओं को दिखा जाए, या सिर्फ आपके मोहल्ले के अकॉर्डिंग कर दिया तो सिर्फ आपके फैमिली को देखा जाए, या आपके पूरे स्टेट को देख लिया जाए तो सिर्फ आपके सिटी को देखा जाए। तो दैट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जस्ट उसका उल्टा, मतलब ये पूरे को लेके चलता है। तो मैक्रो मतलब पूरे देश के बारे में बोलेगा। तो क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मतलब या तो वो पूरे उस एरिया के बारे में बात करेगा, ठीक है, मान लो आपके कॉलोनी में 10 फैमिलीज़ हैं, तो यदि हम उन 10 फैमिली को मिला दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमको मैक्रो के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, माइक्रो के नहीं। माइक्रो में कब आएगा, जब वो सिर्फ आपके अकेले के फैमिली के बारे में बात करेगा, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू दी नेक्स्ट वन, दैट इज योर central issue. What is the main central issue between those economics? First is microeconomics is basically a concern with the determination of output of price for individual firm or industry. इस बात को थोड़ा समझो कि जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी की कंसर्न के बारे में बात करते हैं तो ये किसकी तरफ कंसर्न है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंडिविजुअल के ऊपर कंसर्न है। तो ये किसी भी चीज़ की आउटपुट और उसकी प्राइस के बारे में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल तक ही सोचेगी। मतलब मान लो आपकी फैमिली की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ 10 किलो रुपए टमाटर प्रति किलो खरीद सकती है, लेकिन उससे 1 रुपये भी बढ़ा दिया जाए तो फिर टमाटर खाना बंद कर सकते हो, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका माइक्रो में। लेकिन मैक्रो ये पूरे देश की बात करेगी एज अ होल। सेम थिंग, ये एग्रीगेट प्राइस और जनरल प्राइस। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल। You can note these points. Okay, these are very very important, and few of them you can write in your examination answer also. If you are very good at memorizing answers, you can memorize these points also. Okay, then come to the next, positive and normative economics. So इसको हम लोग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव स्टेटमेंट, वॉट एवर यू से। स्टेटमेंट बोलूँगा तो आप लोग कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो इकोनॉमिक्स पे ही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में मोस्टली आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ पूछता है, तो आप लोगों को बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। ओके, सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इट डील्स विद such economic situations which could be studied by using facts and figures। मतलब क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स उन सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड है जो कब कब हो चुकी है, या तो पास्ट में हो चुकी है, या तो प्रेजेंट में हो रही है, या फिर फ्यूचर में होगी। वो हम लोग का क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और ये कौन से इकोनॉमिक सिचुएशन को डील करती है, जहाँ पे हमारे पास किसी पर्टिकुलर फैक्ट और फिगर हो। मान लो आप किसी भी साल का बर्थ सेंसस निकालो या डेथ सेंसस निकालो, तो आपके पास उसका एग्जैक्ट फैक्ट या फिगर आपके पास होगा। चलिए हम अब इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और स्टेटमेंट्स? सो this statement highlight the nature and extent of economic problems or analyzes the economic behavior of the people related to present, past और future। इतना घुमा फिरा के इतना ही कहना चाह रहा है कि लोगों की इकोनॉमिक की ज़रूरत या इकोनॉमिक की प्रॉब्लम जितने सारे भी एनालिसिस किए गए हैं वो सारे के सारे लोगों के भूत,
भविष्य और वर्तमान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही देख के किया गया है, यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सेकेंड पॉइंट, दिस स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखिए ये पॉइंट आप लोग डायरेक्ट आप डेफिनेशन से तोड़ तोड़ के बना है, ठीक है, इसीलिए आपको ये आप रिलेट कर करके याद कर सकते हो। आप कभी भी कुछ भी याद करो तो ट्राई टू रिलेट इट एंड देन मेमोराइज इट, देन इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके, then come to the next point. These statements are variable since it contains what it contains, facts and figures, correct। क्योंकि देखो अब आप 2010 का सेंसस निकालो, बर्थ सेंसस या डेथ सेंसस कुछ भी हो तो वो अलग होगा। अब अभी 2023 का या 2024 का निकालो तो वो अलग होगा, ठीक है। हर बार हर साल की फैक्ट्स एंड फिगर्स बदलते रहती है, सो दैट्स वाई इसलिए बोला गया है दिस आर वेरिएबल। Okay, then these statements do not reflect any value judgments or opinion of the economist। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक वर्ड मिस करें, पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट, क्योंकि देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होती है, हमारे पास एग्जैक्ट डाटा होती है। आप मान लो आप 2010 का ही बर्थ सेंसस निकाल लो, तो हमने सर्वे करके उसका एग्जैक्ट डाटा निकाला है, उसमें कोई एक इकोनॉमिस्ट नहीं उसको नहीं पूरा खोजा है, उस पर पूरी एक टीम थी, ठीक है, तो हमारे पास उसका एग्जैक्ट डाटा है, ठीक है। तो इसलिए ये किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट के ओपिनियन को या जजमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, लेकिन वहीं पे आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वही करती है। चलिए समझते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वही है जो इसे ना होना चाहिए। मतलब देखिए पहला लाइन वही है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज दैट इकोनॉमिक्स दैट ऑट टू बी, जो इसे होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए, इट डील्स विद द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। थोड़ी देर पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और स्टेटमेंट में डिस्कस किया कि उसके फैक्ट्स और फिगर्स किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट के बेसिस पे नहीं होती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वो किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट पे ही बेस होती है, इसलिए ये नेगेटिव नहीं है, ये नॉर्मेटिव है, ठीक है। बहुत इजी है, सो आपको कनेक्ट करने में इजी हो रहा होगा। आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। दिस स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, किसके वैल्यू जजमेंट, ऑब्वियसली ऑफ द इकोनॉमिस्ट। देन दीज स्टेटमेंट्स लीड्स टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स, ठीक है। क्यों, मान लो 2010 में दो इकोनॉमिस्ट बर्थ सेंसस और डेथ सेंसस ऑफ अ पर्टिकुलर एज निकलने बैठते हैं, लेकिन 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 ये बात समझो, दो लोग दो रकम का डाटा लेके आते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली दो इकोनॉमिस्ट में लड़ाई होगी कि नहीं मेरा डाटा सही है, नहीं मेरा डाटा सही है, तो इसीलिए इट लीड्स टू कंट्रोवर्सीज और डिबेट। देन दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स ओपिनियंस एंड आर देयरफॉर नॉट वेरिएबल फॉर ट्रूथ। इसको हम लोग वेरिएबल इसीलिए ले रख सकते हैं क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर आदमी के ओपिनियन पे बनता है, और किसी पर्टिकुलर आदमी का ओपिनियन कभी वेरिएबल नहीं हो सकता, आई मीन ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। सो आई थिंक दिस वीडियो इज बिकमिंग लिटिल बिट लेंदी, सो द नेक्स्ट पार्ट we will discuss in part 2. Till then, stay happy, stay fit. Thank you for watching.